Good evening to everybody. In the last lecture we discussed on library consortia. So we try to understand the definition and meaning of library consortia. So in context of this concept, to understand, we have given the many examples. This is the age of informations, and each and every moment the information is spreading, and it is very difficult to manage all kinds of the informations. And if we are take example of users, there are different kinds of information needs of each and every users. So one library or single library can't fulfill the information need of different types of users. So according to this need, the library consortia concept has come in front of us. Why the library consortia concept come in front of us? On the base of sharing, on the base of resource sharing. If we come together, two and more than two libraries are there, then the information needs and different types of information needs will be fulfilled by the library consortia there, right? So for understanding, we try to give also example of human being. In the ancient age, human being was living alone in the jungle. And that's why he came to understand that it is very difficult to live alone in the jungle, because all kinds of the needs cannot fulfill by single person in the jungle. So that's why he came into groups. He was living in groups at that time also, and from that need, the group will be create theirs, and from the groups the community will be create theirs, and from the community the society will be create there. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस सिंगल मनुष्य एकटा राहू शकत नाही, हे प्राचीन काळामध्ये आपण पाहिलं की तो वसाहतीमध्ये येऊन राहत होता, ग्रुपमध्ये येऊन राहत होता, नंतर तो वसाहतीमध्ये येऊन राहायला लागला, त्याच्यापासून कम्युनिटीची स्थापना झाली, कम्युनिटीची स्थापना नंतर मग समाजाची स्थापना झाली, सोसायटीची स्थापना झाली. अशा प्रकारे हा सिक्वेन्स किंवा हायरार्की आपण गेल्या लेक्चरमध्ये बघितली, आणि त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की ग्रुप आणि रिसोर्स शेअरिंग किती महत्त्वाचं आहे. त्याच बेसवरती लायब्ररीला सुद्धा हे उदाहरण तंतोतंत लागू पडतं, कारण की कोणतीही सिंगल लायब्ररी वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशन नीड्स असतात युजरच्या, त्या फुलफिल करू शकत नाही. त्यामुळे दोन किंवा दोनापेक्षा लायब्ररी ज्यावेळेस एकत्र येतात, आणि त्याच्यातूनच मग लायब्ररी कन्सोर्शियाची निर्मिती झाली असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. तर library consortia is nothing but the group of libraries which help to fulfill the different types of information needs of different types of users at one place. And that is why we have also taken the example of internet. Internet is the best example of library consortia. When we are talking about library consortia, at that time it is not traditional platform, it is a modern platform. It is not offline platform, it is online platform. And that's why
internet is a suitable example for this. Internet is called the consortia because thousands of websites are available on the internet, and we can visit any kinds of information, and that is why it is called the library consortia. Online consortia, internet is called the library consortia. And web, that is called the www, that is called also W3, means World Wide Web. It is a kind of group of website, and through this we can access any kinds of information, to retrieve the information, to access the informations, and that is why it is called the library consortia. Okay, web group also called the library consortia. Web group is nothing but the group of website, and website is nothing but the, it is a kind of database, it is a kind of online library, it is a kind of digital library, and internet is nothing but the group of digital library, group of websites. So ultimately we call internet as a consortia, right? And how consortia help us to fulfill our information needs, we try to understand here. So in this way, network is most important here. How it will be prepared the network? When two and more than two computers are come together, then it will prepare the network. Okay, that is called LAN, MAN, WAN. Okay, and network. Okay, when two or more than two computers are connected together, that is called the network. Okay, so which kind of the networks are there which we can find on the internet? So the networks are there like LAN, MAN, WAN and PAN. Okay, and other different types of networks are there. Okay, and internet is nothing but the networks of the networks. Networks of the network. Worldwide network. Networks of worldwide, networks of the worldwide network. That is called the internet. Okay, and internet it's called also consortia, because it is a group of online libraries. Right, so in this way we can give the information regarding the consortia.
What is meant by the network? When two or more than two computers are come together, that is called the networks. And according to the geographical area, networks have different types like LAN, local area network, metropolitan area network, worldwide area network, and personal area network. Okay, so in this way there are different kinds of network we can find, and when two and more than two networks are come together, then it will be create internet. Okay, so in this way internet is nothing but the interconnected networks which is spreaded all over the world. तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि नेटवर्क्स किसे, इंटरनेट किसे कहा जाता है। तो दुनिया भर में जो नेटवर्क्स है जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे को, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और all these networks are nothing but they are considered as a LAN, MAN, WAN and PAN, and others networks are also included in these networks. तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंटरनेट को क्यों कंसोर्शिया कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेबसाइट. इंटरनेट इज कॉल्ड ऑल्सो वेब, and web it is called the V3 or www dot. It is a group of website. Okay, so internet is called the web, and when two and more than two webs means websites are come together, that is called the www dot. It is nothing but the group of website, and through this domain, through these webs, we can access different types of information according to the information needs of यूजर्स. ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इंटरनेट को कंसोर्शिया भी कहा जाता है और वेब कहा जाता है, और इंटरनेट इज़ नथिंग बट द नेटवर्क्स ऑफ द नेटवर्क्स. इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है, और रिलेटेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स विच इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, तो ऐसा नेटवर्क की जो दुनिया भर में स्प्रेड हुआ है और इसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है. इट इज़ ए नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, और इसे अदर लैंग्वेज हम वेब भी कहते हैं, जिसे हम W3 और www डॉट भी बोलते हैं. और इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ग्रुप ऑफ वेबसाइट, एंड वेबसाइट इज़ नथिंग बट द ऑनलाइन लाइब्रेरी. And when two and more than two websites are come together, when two and more than two libraries are come together, online libraries, gateways, that is called the library consortia. तो आपने यहाँ पर कई सारी कंसेप्ट समझने का प्रयास किया. इसमें नेटवर्क्स यानी कि क्या, ये हमने यहाँ पर जाना, और नेटवर्क्स किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की. लैन, मैन, वैन किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की. वेब, V3 और www किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की. इंटरनेट यानी कि क्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की. और कंसोर्शिया किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर दैन 5 or 6 कंसेप्ट हियर. ओके, एंड यू शुड बी अंडरस्टैंड दैट. और आपको ये समझ में आई होगी अभी.
तो acquisition of materials, joint purchasing of materials, assignment of specialization materials, coordination, subscription, exchange of duplication, technical service, cooperative cataloging आता है, abstracting and indexing service, interlibrary और reciprocal borrowing privilege, reference and referral services में आता है, publication program, repackaging information, union catalog आता है, mutual notification of purchase आता है, बिब्लियोग्राफिक डेवलपमेंट आता है, न्यूज़ लेटर आता है, जॉइंट डायरेक्टरीज आता है और पर्सनल मैनुअल्स आता है. ओके. कोऑर्डिनेटिंग सर्विस में क्लियरिंग हाउस ऑफ फंक्शंस, रिट्रीवल एंड स्टोरेज फंक्शंस, रेफरल सेंटर आता है. डिलीवरी ऑफ मेलिंग सर्विस में यूजर इंटरेस्ट सर्वे आता है, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट आता है. ओके. और इन सर्विस पर्सनल ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड मीटिंग, ट्रांसलेशन सर्विस, ये सब आता है. ओके. तो इस तरह से हमने लाइब्रेरी कंसोर्शिया यानी कि क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की और इसे समझा विद द हेल्प ऑफ मेनी एग्जांपल्स. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया? नेशनल कंसोर्शिया एंड इंटरनेशनल कंसोर्शिया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया. So if we take example of national consortia, Bangladesh is an sharing network initiative in Bangladesh that is called the national consortia. So some example are given here. In Bangladesh, several resource sharing and network initiative was taken by different type of organizations. National Agriculture's information system, that is called NICE. The Agriculture Information Center AIC was taken initiative to develop network of agriculture institute. Social Science Research Council, that is called SSRC. Social Science Research Council Dhaka was taken an initiative to develop social science information network in Bangladesh. Okay. तो सभी प्रकार के जो नेटवर्क हमें यहाँ पर दिए गए हैं इसे हम नेशनल कंसोर्शिया बोलते हैं. हेल्थ, लिटरेचर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, दैट इज कॉल्ड हेलिस नेटवर्क. हेलिस नेटवर्क वाज डेवलप्ड बाय सीरो, न्यू दिल्ली, इंडिया. नेशनल हेल्थ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, दैट इज कॉल्ड NH, LDOC, ढाका. एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क साउथ एशिया, दैट इज कॉल्ड डेविंसा. Devinsa network was organized by CSCD, Committee on Studies for the Cooperation for Development in South Asia, through the Marga Institute of Colombo, Sri Lanka, and all SAARC countries except Bhutan were all participate in of this network. The National Network on Rural Development, that is called INRD. Then other Center on Integrated Rural Development of for Asia and Pacific, that is called CDAP. Dhaka was taken initiative to develop regional network on rural development. Then Women Information Network, that is called WIN. All these are nothing but all these are called national consortia. You can read it as a example. You can remember. Then CRDAF, then BD, SEEK, NASTI, BARD. There are so many examples are given here. Association of Management Development Institute in South Asia, that is called AM, DISA Library Network. So the Association of Management Development Institute in South Asia was launched a library network on management development. The headquarters of this network was located at the Administrative Staff College of India, Hyderabad. One institute in each SAARC country was selected as a focal point. The Institute of Business Administration Library, Dhaka University, was selected as a national focal point for network. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो एज ए नेशनल कंसोर्शिया के रूप में काम करते हैं, और एज एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, तो बांग्लादेश का जो कंसोर्शिया है वो आप एज एग्जाम्पल करके ले सकते हैं। अब पर अनदर लेसन नोट दी गई है। तो पहले लेसन नोट में हमने देखा कि किस तरह से लाइब्रेरी कंसोर्शिया काम करता है, और यहाँ पर दूसरी लेसन नोट दी गई है जिसके जरिए भी आप कंसोर्शिया का स्टडी कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंसोर्शिया। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कंसेप्ट and definition of library consortia, now we are trying to understand what are the benefits of library consortia. Okay, first one is given, comprehensive collection is possible. When we take example of single library is not able to fulfill the different types of information needs of different types of the users. So this point of view, and from this need, the concept of library consortia has come in front. Okay, तो किसी भी एक प्रकार की लाइब्रेरी सभी प्रकार के यूजर्स की नीड्स जो होती है अलग अलग, वो फुलफिल नहीं कर सकती, और इस वजह से लाइब्रेरी कंसोर्शिया एक कंसेप्ट का उदय और विकास हुआ, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, और कोई भी चीज़ अगर निर्माण होती है तो उसको जो मेन रीजन होता है वो इंफॉर्मेशन नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की, और नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार होना शुरू होता है। तो हम कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन इज पॉसिबल्स, और जब दो से ज़्यादा मोर लाइब्रेरीज व्हेन कम टुगेदर, देन कलेक्शन बिकम द कॉम्प्रहेंसिव मीन्स ऑल इंक्लूसिव, सब उसमें समाविष्ट होते हैं, सब कलेक्शन, सब बुक्स, सब डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूड होता है, ताकि हर प्रकार के यूजर की नीड्स फुल हो सके। बिल्डिंग कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट लाइब्रेरी। ओके, और अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग यूजर के लिए इस्टेब्लिश होती है, और जब ये सभी प्रकार की लाइब्रेरीज एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसमें कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन के बेस पे ही ये लाइब्रेरीज एक प्लेटफॉर्म पे आती है। रिसोर्स शेयरिंग के बेस पे ही ये लाइब्रेरीज एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, और यदि कोऑपरेशन नहीं है, रिसोर्स शेयरिंग नहीं है, तो कोई भी लाइब्रेरी एक साथ नहीं आ सकती, उनमें कम्युनिकेशन नहीं है। दो व्यक्ति अगर फ्रेंड बनते हैं तो क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? ऑन द बेस ऑफ कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, और कम्युनिकेशन सही है, सकारात्मक है, तो वे दोस्त बन जाते हैं। जब दो आदमी के विचार जुड़ते हैं तो वे अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, और उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वह रिश्तों से बढ़कर स्ट्रांग होती है, ऐसा कहा जाता है। तो विचार और कम्युनिकेशन ये लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। ठीक उसी तरह से जब लाइब्रेरीज और एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो कम्युनिकेशन के बेस पे आती है। अवॉइड डुप्लीकेशन कोर कलेक्शन स्पेशली फॉर कोर जर्नल्स, और अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग जर्नल्स होते हैं, डेटाबेस में अलग अलग जर्नल्स हमें दिखाई देते हैं,
और फिर क्या होता है, उसमें जो अलग अलग प्रकार की जर्नल होते हैं तो उसमें हम डुप्लीकेशन अवॉइड करते हैं, डुप्लीकेशन। ओके, कोई भी जर्नल्स यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होता, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म पे हम सभी प्रकार के लाइब्रेरी देखते हैं तो वी ट्राई टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। ओके, तो इंटरनेट पे जब हम कोई भी जर्नल सर्च करते हैं तो वहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है या कॉपीड हो रही है। ओके, इंटरनेट से माध्यम से सपोज आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो और किसी का नाम रखना चाहते हो तो आपको पूरा नॉलेज नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट डालते हैं, ये नाम किसी ने लिया है या नहीं। तो इंटरनेट पे किसी ने नाम लिया नहीं तो आप तुरंत समझ में आ जाता है कि यह ओरिजिनल नेम है, और किसी ने लिया होगा तो आप उसे ले नहीं सकते क्योंकि ये डुप्लीकेट हो सकता है। तो इस तरह से होल कलेक्शन में हम चेक कर सकते हैं whether it is duplicate or original। okay, और फिर स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आर्काइव। इंटरनेट ए इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होती है, डिजिटल लाइब्रेरी होती है, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वहाँ पर होते हैं। तो इंटरनेट एज आर्काइव का रोल प्ले करता है, क्योंकि सदियों से मतलब बहुत साल से ये इंटरनेट की सुविधा हम देख रहे हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है। एक तीन प्रकार की हम कह सकते हैं, फ्यूचर इंफॉर्मेशन विच विल क्रिएट, करंट इंफॉर्मेशन विच हैड बीन क्रिएटेड जस्ट नाउ, जो अभी निर्माण हुई है, और जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन हम जिसे बोलते हैं पास्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है वह हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी उसका यूज़ हम कर सकते हैं या वो यूज़ में आ सकती है, इसलिए हम उसको आर्काइव में रखते हैं। तो इंटरनेट से बड़ा कोई आर्काइव नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम आर्काइव का भी रोल यहाँ पर इंटरनेट प्ले करता है। Easy access to resource sharing on internet by developing common resource database। okay? तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि easy access to resource sharing on internet, और इंटरनेट पे हम एक्सेस इंफॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं और शेयरिंग भी इजीली कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म and a worldwide platform without any monopoly. That is why we can take advantage by remote access, by multiple access. There are many facilities which are given by the internet to the users, and we can take advantage of many services we are getting from the internet। तो इंटरनेट से हमें जो भी कई सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है उसका हम लाभ ले सकते हैं, और फ्यूचर में इंटरनेट के जरिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हमें आज मिल रही है कि हम इमीडिएटली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मल्टी एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम एनी हाउ एनी प्लेस एनी वे एनी टाइम हम इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमें केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए इंटरनेट का अपना एक महत्व है, ऑनलाइन लाइब्रेरी का अपना एक महत्व है और द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। सो दैट इज़ वाई ईच एंड एवरी पीपल आर यूजिंग इंटरनेट लाइब्रेरी नाउडेज। इफेक्टिव डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पर इंटरनेट पे जैसे कि मैनुअल
लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट डिलीवरी करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए भी प्रॉब्लम आता है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट डिलीवरी करते समय वह यूजर को मिला के नहीं, ये भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, श्योरिटी नहीं होती है। और मैनुअल ट्रेडिशनल मेथड में उसको बहुत सारा टाइम लगता है, और जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं होती है वो भी उपलब्ध नहीं होती। तो ये बहुत सारी समस्याएं ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में हम देखते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए, डॉक्यूमेंट डिलीवरी के लिए। लेकिन ऑनलाइन लाइब्रेरी के जरिए और इंटरनेट लाइब्रेरी के जरिए हम डॉक्यूमेंट डिलीवरी तुरंत कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इवन विद इन फ्यू सेकंड वी कैन सेंड द मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। कुछ क्षणों में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हमको यहाँ पर उपलब्ध होती है, उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं। सो बेटर स्कोप फॉर डेवलपिंग यूनियन कैटलॉग। और जब सैकड़ों लाइब्रेरीज, 1000 libraries, millions of libraries are come together, then from their collection we can prepare the यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग मीन्स सभी लाइब्रेरी का मिलकर एक कैटलॉग जब तैयार किया जाता है तो उसे यूनियन कैटलॉग कहते हैं। जैसे कि ए लाइब्रेरी है, बी लाइब्रेरी है, उनका अलग अलग कैटलॉग है। लेकिन जब दोनों मिलकर एक कैटलॉग बनाया जाता है कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसे हम यूनियन कैटलॉग कहते हैं। ओके। और कैटलॉग में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द बुक्स, लिस्ट ऑफ द बुक्स, सीरियल नंबर, एक्सेशन नंबर, देन टाइटल ऑफ बुक्स, ऑथर ऑफ बुक्स, पब्लिकेशन ऑफ बुक, पब्लिशर्स ऑफ बुक, पेजेस, प्राइस, ओके, देन वेंडर्स। सो ऑल दिस related information of the document is given in the catalog. So better scope for developing union catalog. जब लाइब्रेरीज एक साथ आती है, एक साथ रहती है, तो यूनियन कैटलॉग करना भी थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार का जो कलेक्शन है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और एक साथ एक जगह पे देखने को मिलता है। सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब सैकड़ों लाइब्रेरीज एक प्लेटफॉर्म पे आती है, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म पे आती है, तो क्या होता है फिर जो इंफॉर्मेशन है उसकी जो कॉस्ट होती है वह रिड्यूस होती है। यदि मार्केट में एक ही डीलर है, एक ही वेंडर है, तो क्या होता है फिर, तो उसकी प्राइस हाइक हो जाती है, वो मोनोपोली करता है, अपने मनचाहे प्राइस में वो बेचने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत सारे वेंडर्स जब रहते हैं, डीलर जब रहते हैं, तो होलसेल में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कम प्राइस में मिलती है, ये बात हमें बेनिफिट देती है। तो इस तरह से कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर दिए। टाइम सेविंग, सभी प्रकार के लाइब्रेरी जो होती है, ऑनलाइन लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलती है, एक्सेस इंफॉर्मेशन हमें होती है। तो फिर इसका जो बेनिफिट होता है यूजर को होता है टू सेव द टाइम, मनी, एनर्जी ऑफ यूजर्स। ओके। और इम्प्रूव रिसोर्स शेयरिंग इसमें आता है। इम्प्रूव रिसोर्स शेयरिंग इसमें आता है क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग करके हम एक दूसरों को डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। ओके। मोर प्रोफेशनल सर्विस टू यूजर्स। और अलग अलग प्रकार के जो प्रोफेशनल सर्विस है हम यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्प टू डेवलप कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलिज्म अमंग अलायंस प्रोफेशनल्स। ओके। और अलग अलग कॉम्पिटिटिव जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारे बेनिफिट्स एडवांटेज हमें लाइब्रेरी कंसोर्शिया से प्राप्त होते हैं और बेनिफिट देने के लिए ही बेनिफिट होने के लिए ही लाइब्रेरी कंसोर्शिया की निर्मित हुई है। तो इस तरह से यूजर को बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। सो इन दिस वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी कंसोर्शिया। नाउ वी आर वाचिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर लाइब्रेरी कंसोर्शिया। तो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से एफर्ट्स किए गए लाइब्रेरी कंसोर्शिया स्थापन करने के लिए। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया इज द आउटकम ऑफ द डिजायर resource sharing and consortia seem to be getting bigger. The global development of OCLC is a prime example. Due to escalating cost of document, decreasing budgets, inadequate storage area and competent staff, alas professionals of the world are coming together to form consortia. तो इंटरनेशनल लेवल पे क्यों और कब और किस वजह से कंसोर्शिया की निर्मित हुई, उसके क्या रीजन रहे होंगे यहाँ पर दिया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे OCLC इसके रूप में लाइब्रेरी कंसोर्शिया एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। और क्यों? एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपेंसिव होने लगे, डिक्रीजिंग बजट और उसके हिसाब से बजट कम होने लगा, इनएडिक्वेट स्टोरेज और स्पेस का प्रॉब्लम होने लगा, कॉम्पिटेंट स्टाफ, एलास प्रोफेशनल ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टुगेदर। तो फिर एलास प्रोफेशनल एक साथ आए और उन्होंने चर्चा की। देयर आर सेवरल इंटरनेशनल एफर्ट फॉर लाइब्रेरी कंसोर्शिया। और फिर उनकी सोच से लाइब्रेरी कंसोर्शिया की निर्मित हुई, जैसे कि कंसोर्शिया ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड कर्ल्स। यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है। कंसोर्शिया ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी इन मैनचेस्टर दैट इज कॉल्ड कैलिम, दोनों का एड्रेस भी दिया है, नाम भी दिया है। इंटरनेशनल कंसोर्शिया की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर कंसोर्शिया है। कोलोराडो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क वेबसाइट दी गई है, वाशिंगटन रिसर्च लाइब्रेरी कंसोर्शियम, बिफसीस, देन क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफिस ऑफ कोऑपरेशन, कोलोक, कैलिस भी है, चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तकात्सु यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कंसोर्शियम, YULK जापान, देन टोक्यो वेस्टर्न रीजनल एकेडमिक लाइब्रेरी कंसोर्शिया, यामात्सेन इंसेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कंसोर्शियम जापान, कोरिया रिसोर्स शेयरिंग अलायंस कोरसा कोरिया, कंसोर्शियम ऑन कोर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन ताइवान, कंसर्ट। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जो इंटरनेशनल कंसोर्शिया है उसके नाम और उसके वेबसाइट एड्रेस यहाँ पर दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी कंसोर्शिया वी कैन अवेलेबल एट इंटरनेशनल लेवल, सो देयर आर मेनी कंसोर्शिया वी कैन फाइंड। यू शुड रिमेंबर नेम ऑफ द कंसोर्शिया which available at international level. Now Indian Initiative for Library Consortia। तो हमारा भारत का क्या रोल है कंसोर्शिया में, कंसोर्शिया क्रिएट करने में या रिसोर्स शेयरिंग
में क्या रोल रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। In India at present there are many consortia being run successfully by different organization. Some of them are आज, तो उसमें से कुछ यहाँ पर दिए हैं CSIR ई जर्नल्स कंसोर्शिया। तो इस जर्नल का नाम आपने सुना होगा, तो इसको भी एक कंसोर्शिया कहा जाता है। इसे निष्केर ने तैयार किया है, ये आप लिख सकते हैं एज एग्जाम्पल करके। इंडिया में कौन से कंसोर्शिया है उसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, उसके नाम पता होना चाहिए, उसका वेब एड्रेस आपको पता होना चाहिए, और अधिक जानकारी बाय विजिटिंग वेबसाइट यू कैन गेट डिटेल्स। देन इंडेस है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके एड्रेस भी दिए। फोर्सा है, फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग और इन एस्ट्रोनॉमी। यूजीसी इन्फोनेट है। तो ये सभी प्रकार के जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया है ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंडरलाइन जो नेम है ये मेन होता है। तो DAE लाइब्रेरी कंसोर्शियम, ICSI नॉलेज पार्क, ICMR लाइब्रेरी कंसोर्शिया। तो ये सभी प्रकार के जो कंसोर्शिया है इसके नाम आपको ध्यान में रखना होगा, उसकी वेबसाइट भी ध्यान में रखनी होगी। देन हेलिनेट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका, और बांग्लादेश इनिशिएटिव, इसमें भी बांग्लादेश के जो अलग अलग प्रकार के कंसोर्शिया है उसके नाम भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो एज बांग्लादेश कंसोर्शिया करके यहाँ पर सम एग्जाम्पल दिए हैं। कंसिडरेशन नीडेड फॉर्म कंसोर्शिया, तो कंसोर्शिया की ज़रूरत क्यों होती है, उसे क्यों फॉर्म किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि नो सिंगल लाइब्रेरी कैन फुलफिल द different types of information need of different types of users. So from due to this need, two and more than two libraries, many libraries are come together and they form the consortia. Okay, और consortia की निर्मिति करते हैं at one platform. So the following issues need to consider before building the consortia. Okay, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। कंसोर्शिया क्रिएट करने के लिए या फॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और दोनों में से हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है तो हम कंसोर्शिया स्थापन नहीं कर सकते। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, बजट एंड फंडिंग की ज़रूरत होती है। प्राइसिंग इशू होता है, सब्सक्रिप्शन पेमेंट इश्यूज होते हैं, एक्सेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, आर्काइवल इश्यूज होते हैं, यूजेस एंड यूजेबिलिटी इश्यूज होते हैं, कोऑर्डिनेशंस अमंग पार्टनर्स होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट स्टाफ होता है, ओवरकमिंग पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन होता है, द ईगो ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन होता है। ओके, adequate professional training on ICT for allied professional sustainability issues होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग नीड्स और रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत होती है, तब जाके हम कंसोर्शिया फॉर्म कर सकते हैं और उसका बेनिफिट यूजर को दे सकते हैं। सो रिकमेंडेशन क्या है यहाँ पर दिया, इन दिस एरा ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कंसोर्शिया हाईली इम्पोर्टेंट। तो इस ग्लोबल एज में, इंफॉर्मेशन की एज में अलग अलग यूजर की इंफॉर्मेशन नीड्स इंक्रीज हुई है, तो नो सिंगल लाइब्रेरी कैन फुलफिल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। अलग अलग जो इंफॉर्मेशन नीड्स है यूजर की, वो फुलफिल करना सिंगल लाइब्रेरी के लिए कतई पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से
इस इंफॉर्मेशन एज में, मॉडर्न एज में, ग्लोबल एज में नेटवर्क और कंसोर्शिया को बड़ा महत्व है। और नेटवर्क और कंसोर्शिया का जो इम्पोर्टेंस है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लाइब्रेरी कंसोर्शियम इन द कंट्री इज नीडेड टू archive the cost effectiveness and bridging of the digital divide। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ब्रिजिंग द डिवाइस डिजिटल डिवाइड और लाइब्रेरी कंसोर्शिया, ये सभी चीज़ें हमें डेवलप करना जरूरी होता है। टू डेवलप लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन बांग्लादेश वी हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल सच एज appropriate ICT infrastructure, adequate funding and limited trained person, technological capacity, lack of understanding of concept कंसोर्शिया। बांग्लादेश का यहाँ पर उदाहरण दिया है, वहाँ पर कंसोर्शिया है लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बांग्लादेश के जो कंसोर्शिया है उसका आप अलग अलग तरीके से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश का जो कंसोर्शिया इतना हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है, लेकिन जो हमारे देश के, इंडिया के जो कंसोर्शिया है उसके बारे में अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है और उसके संबंध में कोई भी सवाल आपको आ सकता है। और इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश करके एज एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे कि जो अलग अलग देशों में कंसोर्शिया अवेलेबल है, जैसे कि चाइना, जापान, अमेरिका, लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी कंसोर्शिया विच अवेलेबल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो सेम लेसन नोट अदर पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई यहाँ पर। सो देयर इज नीड टू रीड अगेन, यू कैन रीड if you want more and different information about this topic। तो लाइब्रेरी शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग के बेस पर नेटवर्क और लाइब्रेरी कंसोर्शिया की निर्मित होती है। अकॉर्डिंग टू द मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी ने डेफिनेशन बनाई है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते। कंसोर्शियम इज एन एग्रीमेंट, कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर्म टू अंडरटेक एन एंटरप्राइज बियॉन्ड द रिसोर्स ऑफ एनी वन मेंबर्स। तो यहाँ पर कंपनी के अलावा हम लाइब्रेरी शब्द यूज कर सकते हैं और इसकी जो डेफिनेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने बनाई है डेफिनेशन 1999 में। एक्सप्लेन दैट लाइब्रेरी कंसोर्शिया इज अ जेनरिक टर्म टू इंडिकेट एनी ग्रुप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसे हम ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी कहते हैं, दैट आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टुवर्ड अ कॉमन गोल, कॉमन गोल के लिए। वेदर टू एक्सपांड कोऑपरेशन ऑन ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विस, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और सर्विस पर ओवरकम करने के लिए, मात करने के लिए कोऑपरेशन बढ़ाकर लाइब्रेरी कंसोर्शिया की स्थापना की जाती है, सच एज ए कलेक्शन डेवलपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इस तरह से ये डेफिनेशन यहाँ पर सुटेबल है हमारे टॉपिक के लिए, तो उसको आप पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सो देयर आर मैनी डेफिनेशन आर गिवन, यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है और किस तरह से हम कंसोर्शिया डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त और जानकारी दी गई है। जैसे कैलिबनेट है, डेलनेट है, इन्फ्लिमनेट है, जो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जाना। दे आर नथिंग बट द लाइब्रेरी आर्काइव कंसोर्शियम प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
तो वाई लाइब्रेरी कंसोर्शिया की निर्मित क्यों की जाती है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि हमने उस पर चर्चा भी की अभी। इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉयजन, इंफॉर्मेशन का बढ़ता दायरा, ओके। डाइवर्सिटी ऑफ यूजर्स नीड, अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स, ये भी हमने देखा। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, हर एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए तैयार है दैन द प्रीवियस ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। फाइनेंशियल क्रंच, कोई भी लाइब्रेरी फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए भी कंसोर्शिया की नीड होती है। रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक वजह है, एक कारण है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ सफिशिएंटी, कोई भी लाइब्रेरी सिंगल परफेक्ट नहीं होती। तो फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या होते हैं देखते हैं। अराउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, 24 तास यानी 24 आवर्स वी कैन यूज़ द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं। पब्लिशिंग होते हैं, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम पब्लिशर कर सकते हैं ऑनलाइन। स्टाफ डेवलपमेंट है, इजी इंटरेक्शन होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बैक वॉल्यूम देख सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर को भी सॉल्व कर सकते हैं। शेयरिंग रिसोर्स कर सकते हैं। डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं। कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी की देख सकते हैं। वाइट स्पेस प्रॉब्लम, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का भी यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमी इन फाइनेंशियल रिसोर्स देख सकते हैं। इफेक्टिव एंड चीपर ऑपरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। जॉइंट इंटेंशन लाइसनिंग कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस दूसरा है मल्टी एक्सेस, एनी टाइम एनी वे एक्सेस इंफॉर्मेशन। और एनी प्लेस। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पर कंसोर्शिया से मिलते हैं, ओके। अवॉइड डुप्लीकेशन, हम डुप्लीकेट अवॉइड कर सकते हैं, वन प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, ओके। इस तरह से ये सारे फीचर्स कंसोर्शिया के होते हैं। इस तरह से इंटरनेट भी एक कंसोर्शिया है, उसका यूज़ हम करते इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी कंसोर्शिया के फंक्शन क्या होते हैं। नोडल एजेंसी, टू एक्ट एज ए नोडल एजेंसी फॉर इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। एक मुख्य एजेंसी होती है, वो कोऑपरेट करता है सभी लाइब्रेरी को, और हमें उसका बेनिफिट होता है अलग अलग लाइब्रेरी का कलेक्शन का। तो बहुत सारी लाइब्रेरी एक साथ आने की वजह से उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी होता है। सेटअप वर्क ग्रुप्स, ग्रुप वर्क टीम वर्क उसमें होता है। जैसे कि अलग अलग लाइब्रेरी जब हम देखते हैं एक साथ आकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनमें होती है, तो ग्रुप वर्क और टीम वर्क उनमें हमें दिखाई देता है। मेंटेनेंस इजीली होता है बिकॉज सभी प्रकार के लाइब्रेरीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें दिखाई देती है। रिव्यूज ऑफ द प्रोग्रेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी, यूजर की इंफॉर्मेशन नीड फुलफिल हो रही है या नहीं, उसका हम रिव्यू ले सकते हैं और फीडबैक भी ले सकते हैं यूजर से, ताकि हम हमारा इवैल्यूएशन कर सकते हैं खुद का लाइब्रेरी का। प्रोपोगेशन यानी propagate the consortium with others institution, enroll new members into the consortium। तो कोलैबोरेशन करके हम अदर इंस्टीट्यूट को भी हमारे कंसोर्शियम में शामिल कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है हमारा कंसोर्शिया का, उसे हम डेवलप और उसकी ग्रोथ भी कर सकते हैं।
और फिर एग्रीमेंट, जब अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरी एक साथ आती है, एक प्लेटफॉर्म पे आती है ऑनलाइन कंसोर्शिया में, तो एक उसमें एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के बेस पे ही वे एक साथ काम करते हैं, ग्रुप में काम करते, टीम वर्क करते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम विल बी क्रिएट देयर। यदि एग्रीमेंट नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशंस, सभी प्रकार की जो अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, भले ही उनके नेचर अलग हो, उनके फंक्शन अलग हो, फीचर अलग हो, लेकिन एग्रीमेंट के बेस पर, MOU के बेस पर वे एक साथ आते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनमें होती है और फिर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। जॉइंट वेंचर में वे काम करते हैं, JV जिसे हम बोलते हैं, टू लुक आफ्टर ऑल द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज अंडर द लाइब्रेरी कंसोर्शियम मस्ट वर्क jointly, just like joint ventures in business sectors make a total success। जब एक साथ लाइब्रेरीज आती है तो वे एक साथ काम भी करते, टीम वर्क करते, ग्रुप वर्क करते हैं और एक साथ उनकी ग्रोथ भी करते हैं जॉइंट वेंचर के साथ। एनुअल मीटिंग उनकी होती है तो बहुत सारे मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, तो हर एक का जो रिक्वायरमेंट है, हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास, क्वेरी सॉल्व करने का प्रयास उस मीटिंग में किया जाता है। एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होते हैं फ्रीली हमें यूज करने को मिलते हैं, रिमोट एक्सेस करने को मिलते हैं, मल्टी एक्सेस करने को मिलते हैं, एनी टाइम एनी वे एनी प्लेस वी कैन एक्सेस सच काइंड्स ऑफ द resources, or it will save the time, money, energy of users। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स का भी अपना एक महत्व है जो हम लाइब्रेरी कंसोर्शियम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ब्रिजिंग द गैप, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और मॉडर्न लाइब्रेरी, इनमें जो गैप है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स और बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कंसोर्शिया के। सो हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू। नेशनल कंसोर्शिया विद एग्जांपल्स and what are the benefits of consortia, what are the requirement to form the consortia, and what is the definition, meaning and concept of consortia, why it is need the consortia। Okay, now we are watching that consortia models prerequisite for information formation consortia। कंसोर्शिया की निर्मित के लिए, निर्माण के लिए किस तरह के रिक्वायरमेंट हमें लगती है और उसके जो अलग अलग मॉडल्स है, टाइप्स है, यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है ओपन कंसोर्शिया। तो बाय द नेम इट इंडिकेट दैट इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन, इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। So this type of consortia is open-ended and members of library have to freedom to join or leave from consortia at any time। तो जो लाइब्रेरी मेंबरशिप मेंबर्स होते हैं यहाँ पर कंसोर्शिया में, वो फ्रीली ज्वाइन हो सकते हैं और फ्रीली लेफ्ट भी हो सकते हैं। देयर इज नो restriction on them। In this case, publisher define a minimum numbers of libraries for the consortium to take off at specific rate per product। तो यहाँ पर जो अलग अलग कंसोर्शिया होती है लाइब्रेरी में, और कंसोर्शियम होती है, लाइब्रेरीज होती है कंसोर्शिया में, टू टेक ऑफ, तो अलग अलग रेट प्रोडक्ट के कंसोर्शियम डिसाइड करते हैं। इंडेक्स कंसोर्शियम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंसोर्शिया। तो इंडेक्स का यहाँ पर उदाहरण दिया है। ये ओपन कंसोर्शिया का प्रकार है। और क्लोज ग्रुप कंसोर्शिया, दिस टाइप ऑफ कंसोर्शिया फॉर्म बाय द सेम टाइप ऑफ मेंबर्स एंड हैज़ अ कॉमन नीड टू क्रॉस रिसोर्स इन स्पेसिफिक एरिया। तो कॉमन नीड के बेस पर, कोऑपरेशन के बेस पर, रिसोर्स शेयरिंग के बेस पर ये लोग एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं टू फॉर्म द कंसोर्शिया एंड
to fulfill the common goal, to fulfill the information need, common information needs that come together. Here information and operation of the consortia guideline and its administration are fairly easy and simple. तो यहाँ पर ये कंसोर्शिया यूज करने की, पार्टिसिपेट और लेफ्ट होने की एक गाइडलाइन होती है। रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही हम इस कंसोर्शिया का मेंबर बन सकते हैं और मेंबर को लेफ्ट भी कर सकते हैं। और उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है अपना, और उसके जरिए उसका फंक्शन चलता है। CSIR इसका एक एग्जांपल है, DAE है, IIM है, आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंसोर्शिया। तो आपको मैच द पेयर में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलम में कंसोर्शिया मॉडल या टाइप्स दिए जाएंगे और दूसरी और बी कॉलम में एग्जांपल दिए जाएंगे, और यू शुड टोल्ड टू मैच द पेयर। In centrally funded model, this type of consortium depend on the central funding agency, and parent body shoulders the financial responsibility of running the consortium. तो यहाँ पर parent organization के जरिए जो कंसोर्शिया इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसे सेंट्रली फंडेड मॉडल कहते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके जरिए कंसोर्शिया की निर्मित हुई है और फंड भी वे करते हैं, जैसे कि इंडेस है, UGC इन्फोनेट है, CSIR, ICMR और MCIT आर एग्जांपल ऑफ दिस मॉडल। शेयर बजट मॉडल भी इसमें आता है। दिस टाइप ऑफ कंसोर्शिया कम आउट विद appropriate sharing of funds with participation members. The management of funds is individually handled. Double IM and FORSA are example of this model. Publisher initiative इसमें आता है। Publisher offered a deep discount consortium price to participating libraries on national levels. DICScience Direct है, Emerald है, are example of this type of model. तो फिर ये अलग अलग प्रकार के मॉडल्स है, जिसे हम टाइप्स भी कह सकते हैं, वैराइटीज ऑफ कंसोर्शिया कह सकते हैं, और उनके जो एग्जांपल है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंसोर्शिया भी यहाँ पर दिया है, जैसे कि द टाइप्स ऑफ कंसोर्शिया डील विद द स्पेसिफिक ग्रुप्स। लिसा प्लस कंसोर्शिया ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडल्स। सब्जेक्ट बेस्ड कंसोर्शिया है, इसमें फोर्सा आता है, UGC DAE आता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डील करते हैं। रीजनल कंसोर्शिया आता है, इसमें रीजनल लेवल पे ये काम करते हैं, जोग्राफिकल लेवल पे। इसमें चंडीगढ़ लाइब्रेरी कंसोर्शिया आता है। रीजनल कंसोर्शिया इसमें इंडेस, जीम कंसोर्शिया, आईकार कंसोर्शिया, ई जर्नल्स कंसोर्शिया एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। और नेशनल कंसोर्शिया भी एक प्रकार होता है, एक मॉडल होता है। इसमें इंडेस है, UGC इन्फोनेट का एग्जाम्पल है जो नेशनल लेवल पे काम करता है। और इंटरनेशनल कंसोर्शिया होता है, यह इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, तो OCLC इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो मॉडल्स है, यानी कि जो वैराइटीज़ है कंसोर्शिया की, जो टाइप्स कह सकते हैं हम, उससे कैटेगरीज कह सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की और उनके जो बेस्ट एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए। तो इस पर मैच द पेयर ये सवाल आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो कंसोर्शिया फॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अलग अलग जो चीज़ें होती है उसकी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। ला 2012 डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट, कंपोनेंट, फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। कंसोर्शिया अप्रोच ऑफर अट्रैक्टिव सॉल्यूशन टू मेनी आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी। पार्टिसिपेटिंग मेंबर होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, उनके अलग अलग जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम होती है, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं।
नीड ऑफ शेयरिंग एग्जिस्टिंग फिजिकल रिसोर्सेज, पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग ऑफ कॉमन नीड्स वगैरह वगैरह। ओके, तो पहले देखते हैं यहाँ पर हार्डवेयर की ज़रूरत होती है एज अ प्रीरिक्विजिट करके, और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। विदाउट सॉफ्टवेयर और विदाउट हार्डवेयर कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती, आईसीटी की और कंसोर्शिया की, इंटरनेट की। और फिर हार्डवेयर में क्या आता है, सीडी आता है, पीसी आता है, सीडी नेट आता है वगैरह वगैरह। ओके, सर्वर आता है। और सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं। नेटवेयर भी इसमें आता है। नेटवेयर यानी कि लैन मैन वैन की ज़रूरत होती है। ह्यूमन वेयर इसमें आता है, जैसे कि मैन पावर और ट्रेनिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। लाइब्रेरी कंसोर्शिया मेंबरशिप, गवर्नेंस, फंडिंग और लाइसेंस की ज़रूरत हमें क्यों होती, कैसे होती, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। There is no need to discuss again the same topic. फंडिंग कौन करता है, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट फंडिंग करता है कंसोर्शिया को। तो वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, आप पढ़ सकते हैं। और चैलेंजेस क्या है कंसोर्शिया के आगे, व्हाट आर द ड्रॉबैक, व्हाट आर द प्रॉब्लम कम इन फ्रंट ऑफ द कंसोर्शिया। देन अरोरा and Agrawal 2003 explore in the work that library consortia are facing new and different challenges. In addition, traditional goal for resources sharing and group purchase, they look at the project. तो किस तरह की समस्याएं और चैलेंजेस लाइब्रेरी कंसोर्शिया के आगे है, तो ये यहाँ पर देखते हैं। मार्केटिंग लाइब्रेरी consortia can be great benefit to members library publicizing their collection and servicing as well as the consortium work। तो बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारी लाइब्रेरी एक साथ आने की वजह से, एक प्लेटफॉर्म के साथ आने की वजह से कलेक्शन बढ़ता है, यूनियन कैटलॉग की जो रेंज है वो बढ़ती है, स्कोप बढ़ता है। लेकिन हर एक कंसोर्शिया हमें पता होना चाहिए, एज बीइंग प्रोफेशनल, लाइब्रेरी प्रोफेशनल, हमें भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा कंसोर्शिया किस काम के लिए हम यूज कर सकते, किस इन्फॉर्मेशन के लिए हम उसका यूज कर सकते। तो फिर जो नॉन प्रोफेशनल है उनकी तो यहाँ पर बात ही नहीं। तो इसके लिए मार्केटिंग होना ज़रूरी है, हमें भी इसका पता होना चाहिए। यानी कि जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल होते हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल है लाइब्रेरी, उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि किस कंसोर्शिया से हम किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, तभी उसका इफेक्टिव यूज हो सकता है। पॉलिटिकल एक्शन, कंसोर्शिया आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्शन। फॉर द एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट मेजर कंसर्न इज द यूनिफॉर्म कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन एक्ट एज यूसिटा, which will have profound effect on software licensing. Many American libraries groups oppose UCITA and consortia are networking together, both understand its implications and provide united response to it. तो कंसोर्शिया पे लाइब्रेरी, कंसोर्शिया पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, एक्शन का परिणाम भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट यदि कोई रूल्स बनाता है तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। यदि हमने कोई गलत बात कर दी और उसके अगेंस्ट, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आज लोग बहुत सारी वेबसाइट बना रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है इंडिया का, वहाँ पर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी आप उसको अच्छी तरह से चला सकते हैं। और यदि हम ऐसा
ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वर्चुअल कैटलॉग होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो फिजिकल कैटलॉग हमें दिखाई देता है, उसका यूज़ हम करते हैं और उसकी हैबिट भी हमें हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन लाइब्रेरी या कंसोर्शिया इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तो वर्चुअल कैटलॉग होता है। तो जब हम जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तभी हमें वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त हो सकती है, अदरवाइज नो। डेवलपिंग आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये युग है और यहाँ पर हर जगह पे आईसीटी का ही यूज होता है। और जिसे आईसीटी का नॉलेज नहीं है, they are illiterate of ICT, then they can take advantage of this consortia, उनको उसका लाभ नहीं हो सकता है। होस्टिंग डिस्टेंस एजुकेशन क्लासेस एंड प्रोग्राम, तो होस्टिंग हम देखते वेबसाइट जो होती है, जैसे लाइब्रेरी का एक लोकेशन होता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का, और जब हम वहाँ पर विजिट करते तभी उसका लाभ ले सकते, यूज कर सकते हैं। और किसी कॉलेज के कैंपस में वो लाइब्रेरी होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होती है, कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज के कैंपस में होती है, और पब्लिक लाइब्रेरी सेंट्रल सिटी में होती है। ठीक उसी तरह से जब ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, डिजिटल लाइब्रेरी होती है या वेबसाइट होती है, वर्चुअल होती है लेकिन उसे रखने के लिए एक प्लेस होती है और वहाँ से वो ऑपरेट होती है, तो उसको होस्टिंग कहा जाता है। ओके, तो वेबसाइट को रन करने के लिए, वेबसाइट रखने के लिए वहाँ पर एक प्लेस होती है, तो उसको होस्टिंग कहा जाता है। और होस्टिंग के कई सारे प्रॉब्लम है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, सर्वर का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से कुछ वेबसाइट अच्छी तरह से चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ वेबसाइट का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, इसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम आते हैं। डिजास्टर प्रिपेयरनेस, तो वो सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं, जैसे कि वायरस है और वेबसाइट हैक हो सकते हैं, नेटवर्क हैक हो सकता है और इंफॉर्मेशन हैक की जा सकती है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आते हैं। अचीव स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ओवर क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन हम इस पर मात कर सकते हैं। कंबाइन देयर बाइंग पावर टू बेटर प्राइस, प्राइस के भी इशू यहाँ पर होते हैं, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में हमें प्राप्त होती है, तो यहाँ पर अलग अलग प्राइस हमें देखने को मिलती है। डिटरमाइन पब्लिशर एंड वेंडर पॉलिसी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ publishers which are available on the network internet, and it is very difficult to follow the different types of policy of different types of publisher और vendors, तो उसमें यूनिफॉर्मेलिटी नहीं होती है, एक रूपता नहीं होती है, हर एक के रूल अलग अलग होते हैं, तो ये यूजर के लिए हेडेक बन जाता है। एड्रेस एंड एवर चेंजिंग एरे नीड्स एंड सर्विस, तो हर पल हर यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती जा रही है, तो इसके लिए लाइब्रेरी कंसोर्शिया के सामने एक दिक्कत खड़ी हो जाती है कि भले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो लाइब्रेरीज होती है, अलग अलग फीचर, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग टाइप्स की जो लाइब्रेरीज होती है एक प्लेटफॉर्म पे आती है, लेकिन दिन ब दिन पल हर पल हरदम यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही और अलग होती जा रही, तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया के सामने ये भी एक चुनौती मानी जाती है। ओके, एडवांटेज और लिमिटेशन क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं। इंक्रीज द एक्सेस बेस, रैशनल यूटिलाइजेशन फंड का प्रॉब्लम होता है। गेटवे ऑफ इंफॉर्मेशन, इंश्योर कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसोर्स को दोनों का कॉम्बिनेशन और संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे लेकिन क्वालिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्वालिटी
ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी कम मिलेंगी तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी और क्वांटिटी में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। Improve the existing library service, enhance the visibility of image library, harness of development, access to wider numbers of resources. ओके तो ये सभी प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो फंड जो मिलता है उसका सही इस्तेमाल हमारे द्वारा होना जरूरी होता है। सिमलेस एक्सेस, इजी राउंड क्लॉक एक्सेस, तो 24 आवर्स हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। नो फियर ऑफ वियर टीयर एंड थेफ्ट, तो यहाँ पर किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का कंप्लेंट और किसी प्रकार की थेफ्ट नहीं हो सकती। एनी टाइम एनी वे एनी प्लेस वी कैन एक्सेस फ्रॉम 24 आवर्स। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग बेटर लाइब्रेरी सर्विसेज, तो इसमें बेटर सर्विस लाइब्रेरी का यूज़ हम कर सकते हैं। लाइसेंस फॉर यूज आर्काइवल एक्सेस एंड प्रिजर्वेशन सब्सक्राइब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, अवेलेबल कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शंस, तो इसमें कॉम्प्रहेंसिव कलेक्शन होता है उसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। एलिमिनेट द नीड्स फॉर डिफरेंट पासवर्ड और ईच टाइटल्स, अलग अलग टाइटल के अलग अलग पासवर्ड, तो पासवर्ड ध्यान में रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेटर थिंग इज दैट यू शुड कीप वन पासवर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ द लॉगिन, सो इट विल रिमेंबर फॉर एनी टाइम्स। देन इम्प्रूव द बेटर रिसोर्स शेयरिंग, इसमें शेयरिंग इम्प्रूव होती है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी इजीली होती है। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमको कंसोर्शिया को देखने को मिलते हैं और पीछे भी हमने बहुत सारा बेनिफिट्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। लिमिटेशन, स्पेशल स्किल होना ज़रूरी है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, राइट डायरेक्ट एक्सेस की ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है, अनरिलायबल टेलीकम्युनिकेशन लिंक इसमें आते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, कभी कभी नेटवर्क लो होता है, उसका स्पीड लो होता है। वाईफाई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बैकअप ऑफ डेटाबेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट द ह्यूज इंफॉर्मेशन विल बी क्रिएट देयर एंड स्प्रेड ऑन द नेटवर्क। प्रॉब्लम ऑफ ई जर्नल्स, इतने जर्नल्स है, ई जर्नल्स है तो कौन से पेयर रिव्यू और कौन से नॉन पेयर रिव्यू, कौन से क्वालिटी और कौन से विदाउट क्वालिटी ये करना तय करना डिफ़िकल्ट होता है। इनसफिशिएंट सर्विस, इसमें प्रॉब्लम आता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम होता है। एक्सेसिव कंट्रीब्यूशन फीस इसमें ज़्यादा होती है। ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम होता है, जो नेटवर्क चलाते हैं हैंडल करते हैं, सबकी इसमें कॉस्ट हाई होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी कंसोर्शियम के बारे में हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। उसमें कंसोर्शियम मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, टाइप्स नेशनल इंटरनेशनल्स और उसके बेनिफिट्स और रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरी होती है और लाइब्रेरी कंसोर्शियम की निर्मित क्यों की जाती है और लाइब्रेरी कंसोर्शियम के जो अलग अलग मॉडल्स है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। और लाइब्रेरी कंसोर्शियम के द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है यूजर को उसके बारे में जानने का प्रयास किया। उसके फीचर्स क्या क्या है और प्रेजेंट में इसका यूज़ हमें क्यों और कैसे हो रहा है इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये यूनिट के साथ ख़त्म हुआ है, फोर्थ यूनिट भी ख़त्म हुआ है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट unit with next topic, so we will stop here. Thank you.